Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Good evening and welcome to the Sunday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic and business news of the day. Today we'll also be taking calls from you, our listeners, on mutual funds and matters related with them. The numbers to call us on are 23314444, 23717106 or 23717117. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, मनोज पाठक। नमस्कार, मार्केट मंत्र की ताजा अंक में आपका स्वागत है। आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम कारोबारी खबरों के साथ साथ म्यूचुअल फंड पर विशेष रूप से बातचीत करेंगे और हमारी बातचीत में आप भी हो सकते हैं शामिल, पूछ सकते हैं हमसे म्यूचुअल फंड से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल। हमसे बातचीत करने के लिए आप डायल कर सकते हैं 23314444, 23717106 या फिर 23717117। हमारे साथ खबरों पर चर्चा और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं म्यूचुअल फंड विशेषज्ञ धीरेन्द्र कुमार। धीरेन्द्र जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। वेलकम धीरेन्द्र। थैंक यू, धन्यवाद आपका। आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं राजेश लेख। Foreign investors pump in nearly 18,000 crore rupees into the Indian capital market so far in June. India becomes the 12th largest holder of US government securities in April. And conditions becoming favorable. Monsoon to reach North India next week, says the Indian Meteorological Department. विदेशी निवेशकों ने जून महीने में अब तक भारतीय पूंजी बाजार में लगभग 18,000 करोड़ रुपए का निवेश किया। भारत अप्रैल महीने में अमेरिका में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रखने वाला 12वां सबसे बड़ा भागीदार बना और भारतीय मौसम विभाग ने कहा बारिश की संभावनाएं अच्छी दिशा में आगे बढ़ रही हैं। उत्तर भारत में मानसून अगले सप्ताह से सक्रिय होने की उम्मीद है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक यानी एफपीआईज ने इस वर्ष जून महीने में अब तक भारतीय पूंजी बाजार में 17,985 करोड़ रुपए का निवेश किया। ताजा आंकड़ों के अनुसार एफपीआईज ने 1 जून से लेकर 19 जून के बीच कुल मिलाकर 20,527 करोड़ रुपए का निवेश किया, जबकि 2,569 करोड़ रुपए की निकासी डेट सेगमेंट से की गई। इस तरह पूंजी बाजार में कुल 17,985 करोड़ रुपए का निवेश हुआ। गौरतलब है कि पिछले 3 महीनों से लगातार एफपीआईज बिकवाल बने हुए थे। मई महीने में 7,366 करोड़ रुपए की शुद्ध निकासी हुई। अप्रैल में 15,403 करोड़ रुपए से अधिक का पूंजी बाहर चला गया। उधर मार्च महीने में 1,01 करोड़ रुपए की निकासी भारतीय पूंजी बाजार से एफपीआई के द्वारा की गई थी। We have a first caller online with us, Rajiv from Delhi. Rajiv, we welcome you to Market Mantra. Please ask your question. Hello. Please ask your question, Rajiv. Yeah. Should I put my question? Yes, please. My question is, I have recently invested through ET Money in some direct funds of mutual funds. Mm-hmm. I just want to know what interest does ET Money have, since my funds are all direct funds and there is no distributor commission or a distributor involved in it. There is absolutely no financial incentive available to ET Online to do that, and ET Online is not alone. There are few other platforms, something like Kubera, Grow, ATM Money, which also do that. This remains a mystery, but it's not a mystery. If you look at it, there are many businesses which are being built where the business does not make money, and it has all been run on hope that once they have the threshold, large number of investors, at a future date they will be able to sell something or the other to the same investors or same customers to make money. So
yes, you are right. And there has been some background in terms of that. You remember Flipkart, or you know Flipkart? It's a large business. It was built, it never made money, and kept on getting more and more investors. And eventually it has been sold. And so everybody has made money, except that the business still doesn't make money. हमारे साथ दिल्ली से इस बीच फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं तौफिक साहब, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर मैं पूछना चाह रहा था, जैसे मैं 6 से 7 लाख रुपए 2 साल के लिए शेयर बाजार में निवेश करना चाहता हूँ, अलग अलग कंपनी में। तो मतलब जो 1-1 लाख रुपए करके लगाऊं 6-7 कंपनी में, तो एक साथ सारी कंपनी में लूँ, थोड़ा जैसे 2 कंपनी में ले लिया अभी, फिर उसके बाद 2 कंपनी में, फिर 2 कंपनी में, इस तरह थोड़ा 2 साल 3 साल का आगे का हिसाब थोड़ा प्लीज बताएंगे। नहीं, 2-3 साल के लिए आपको शेयर बाजार में पैसा नहीं लगाना चाहिए। हो सकता है 1-2 साल बाजार ऊपर नीचे होता रह जाए, हो सकता है कुछ बात बने नहीं। ये 2-3 साल का जो समय, आप कंपनी में जहां तक पैसा लगाने की बात है, जरूर पैसा धीरे धीरे लगाना चाहिए। जरूर एक कंपनी में नहीं लगाना चाहिए, बहुत सारी कंपनियों में लगाना चाहिए, अच्छी कंपनी में लगाना चाहिए। लेकिन 2-3 साल उचित समय नहीं है कंपनियों में पैसा लगाने के लिए। Manish is with us. Now, Manish, we welcome you to Market Mantra. Manish from Delhi, please go ahead. Yeah, sir, good evening. My question is that my daughter just has joined the company 2 years back, and she would like to invest in the mutual fund. She is just 24-25, and she wants to do it for maybe minimum 15 years. So, can you suggest one multi-cap fund which will be ideal for her on a long-term basis? Thank you. Congratulations. Sure, I will do. But I think, it is more important to help her learn fishing than serve her fish. It's an old saying. So I would say that, let her try her out. There's a whole joy of learning the whole process. Don't feed her with the recommendation and everything. If I have to recommend, few good multi-cap fund, Mirae Asset, multi-cap fund is one, or, SBI focused is another, or, many other programs. I have listed quite a few. It's a large set. That's a nice way. One should do SIP, 15-20 years. That's the only hope for individual investors to accumulate something meaningful, but help her learn. I think that should also be your objective. इस बीच हमारे साथ कोलकाता से एक श्रोता जुड़ गए हैं, त्राशांता। आपका बहुत बहुत स्वागत, सवाल पूछिए। थैंक यू सर। जी, आपका प्रोग्राम मैं रेगुलर सुनता हूँ। जी, ये मेरा पहला कॉल है सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सवाल पूछें। सर मेरा छोटे 3 क्वेश्चन है सर। जी सर, पहले क्वेश्चन सर, ग्रो के थ्रू में मैं पिछले 4 मंथ में सर अबाउट 3 लाख इन्वेस्ट किया है सर। मेरा सर वो जो SBI स्मॉल कैप, SBI ब्लू चिप फंड, SBI फोकस फंड, एंड सर एक्सिस मिड कैप, एक्सिस ब्लू चिप, एंड मिराe asset टैक्स सेविंग जो फंड। तो सर पोर्टफोलियो कैसे है सर? ग्रो सर कितना रिलायबल है? ओके सर। जी मेरा सर 3rd क्वेश्चन है सर। मुझे धीरे धीरे करके आंसर दीजिए एक बार। सर प्लीज सर आगामी कुछ महीने में सर मैंने फ्रैंकलिन इंडिया थीटा फ्रैंकलिन यूएस अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट फंड है ना सर? हाँ, उसमें सर मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो वहाँ पे बहुत हाई रिस्क है, तो वो हाई रिस्क जो इग्नोर करता हूँ, तो मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ क्या सर? पहला कि ग्रो के जरिए आप इन्वेस्ट करते हैं, कितना खतरनाक है? खतरनाक नहीं है। अगर ये सारे जो प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो कि आपको डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करने के लिए में मदद करते हैं और काफी आसानी से आप इनके जरिए अपना निवेश कर पाते हैं, अगर किसी वजह से ये बंद भी हो जाते हैं तो आपके पैसे को कुछ नहीं होगा।
क्योंकि आपका पैसा फंड कंपनी में इन्वेस्ट हुआ है, रजिस्ट्रार के जरिए आपको सारा इंफॉर्मेशन आपको उपलब्ध है। अगर एक दिन ये प्लेटफॉर्म अगर बंद हो जाते हैं और एक दिन के बाद अगर आप अपना पैसा निकाल सकते हैं, निश्चिंता से आप अपना पैसा निकाल सकते हैं, क्योंकि फंड में ये पैसा जाता है। रजिस्ट्रार कंपनी जो कैम्स और कार्य ये आपको सर्व करते हैं, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन का अपना रजिस्ट्रेशन सर्विस है। और तो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है ये अगर कल नहीं हो तो आपको नुकसान नहीं होगा, असुविधा जरूर होगी, क्योंकि ये बहुत ही सुचारू तरीके से आपको बड़ी आसानी से आपको निवेश आप कर पाते हैं। दूसरा कि आपने ये जो पोर्टफोलियो बनाया है, ये सारे फंड अच्छे हैं, पर इतने ढेर सारे फंड के बिना भी एक अच्छा पोर्टफोलियो बन सकता है और ज्यादा आसान होगा 6-7 फंड में पैसा लगाना। और शुरुआत में मुझे लगता है कि अगर आप हर एक कंपनी का अगर आप मल्टी कैप फंड खरीदते हैं और वो मल्टी कैप फंड बहुत बड़ा नहीं है, तो आपका जो उद्देश्य है मिड कैप में लगाने का, स्मॉल कैप में लगाने का, क्योंकि आप जैसे फोकस फंड में पैसा लगा रहे हैं, उसका उद्देश्य ही होता है कि आप एक ऐसे पोर्टफोलियो में पैसा लगा रहे हैं जो बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड नहीं है, लेकिन आप 7 फंड ऐसे लगा करके वो जो उद्देश्य है वो पूरी तरह से नलिफाई हो जाता है। तो कम फंड और अच्छे फंड और उन पर नजर बना के रखना भी आसान होता है। आप उसमें इंटरेस्टेड भी होते हैं, क्योंकि जब आपके पास 7-8 फंड होते हैं, एक आधा अच्छा नहीं कर रहा है, तो आप उसमें इच्छुक नहीं होते हैं कि वो बारीक से नजर रखने में। तीसरा बात की ये फ्रैंकलिन का यूएस अपॉर्चुनिटी फंड हाई रिस्क है, नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो हाई रिस्क है। भारतीय इक्विटी फंड की तरह का ही उसमें रिस्क है और वो ऊपर नीचे जरूर होता है, जो कि कोई भी इक्विटी फंड होगा जरूर लगाना चाहिए। और ये आपके पास एक अच्छा विकल्प है, एक्टिवली मैनेज यूएस अपॉर्चुनिटी फंड। From Delhi, we are joined in by Lakshman Das. We welcome you, Lakshman. नमस्ते सर। आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं अपना रेडियो की वॉल्यूम कम कर दीजिए प्लीज। मैंने बंद कर दिया सर जी। मेरा सर क्वेश्चन ये था, मैंने ना अपने आईसीआईसी बैलेंस फंड से अभी स्विच किया था आईसीआईसी डेप्थ हाइब्रिड फंड। तो क्या सर इसमें जो डेप्थ फंड में कोई रिस्क बना रहता है सर, मतलब पैसा का? लक्ष्मण जी, धीरेन जानना चाहते हैं कौन से फंड में आपने शिफ्ट किया है? मैंने सर आईसीआईसी बैलेंस फंड से आईसीआईसी डेट फंड में। ओके। हाँ जी। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ क्या इसमें भी रिस्क रहता है पैसा मतलब प्रिंसिपल लॉस होने का? जी हाँ, प्रिंसिपल लॉस होने का संभावना रहता है, क्योंकि आप दोनों में अंतर यही है कि उसमें बैलेंस फंड में बैलेंस फंड में आमतौर पे 70 से 75% इक्विटी में लग सकता है और 1/4 पैसा या 1/3 पैसा आपका फिक्स्ड इनकम में लगा रहता है। और इक्विटी बाजार तो आप जानते ही हैं कि काफी उतार चढ़ाव, कम समय में काफी नुकसान हो सकता है अगर आप कम समय के लिए लगा रहे हैं। डेट फंड में भी ऐसा हो सकता है, लेकिन सारा पैसा फिक्स्ड इनकम में लगा रहता है और उतना नुकसान नहीं होता है। और पहले तो हम काफी निश्चिंता से कह पाते थे कि डेट फंड में भी नुकसान आपका बड़ा कम होता है। हाल फिलहाल अगर जिस तरह से कंपनी में नुकसान हुआ है, जिस तरह से लोगों का पैसा फंसा है या डेट का पैसा, बॉन्ड में लगाया हुआ पैसा वापस नहीं आया है समय से। और म्यूचुअल फंड का एक और थोड़ा वहां पे एक दूसरा नुकसान है कि डेट में भले ही अगर पैसा भविष्य में कभी मिल जाएगा, अभी उतार चढ़ाव कुछ हो रहा है या किसी फैसले की वजह से कंपनी अगर समय पे अपना पैसा नहीं दे पाती है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में ओपन एंड फंड है, रोज निवेशक आते हैं जाते हैं, तो इसका उचित आकलन कर पाना जरूरी है। इस वजह से अगर कोई मामूली सा अगर गलती भी, अगर कोई पैसे में रुकावट आई, जो कि भले ही फंड का 1 या 2% हो, ब्रेक तो जी राजेश, अब मेरी आवाज आ रही है? इज इट फाइन नाउ? यस इट इज। ओके। Even if the money gets stuck for a brief period, then the fund company has to do the valuation whereby the loss is reflected immediately. So there is a possibility of erosion of principal or you getting lower than your capital, your money invested. But the scale of decline that we have seen is not very substantial. Many a times fund companies, the money getting stuck in a bond, if it gets resolved over a period of time, then sometimes it takes time. There has been a provision has been made, but yes, there can be a decline in value of debt fund. आइए एक बार फिर से आमंत्रित करें दिल्ली से अपने श्रोता को। दिल्ली से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं संजय जी, बहुत बहुत आपका स्वागत। सवाल पूछिए।
हाँ जी, मैं ICICI प्रूडेंशियल कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड और HDFC कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में निवेश करना चाहता हूँ, तो कैसे फंड है और क्या इनमें अगले 10 साल में कितना रिटर्न मिल सकता प्रति वर्ष, और क्या इसमें SIP के माध्यम से भी निवेश करना ठीक रहेगा? यही मेरे आमतौर पे डेट फंड में आपको जो खतरा है, जिस वजह से हम SIP करते हैं, उस खतरे से, क्योंकि आमतौर पे हम SIP इसलिए करते हैं ताकि बाजार के पीक को हम ना पकड़ ले। बाजार अब चढ़ा हुआ है और उस समय आपने निवेश कर लिया, तो वो जो खतरा जो इक्विटी में बना रहता है कि आपकी ज्यादा पैसा लगाते समय, क्योंकि आमतौर पे हम पैसा आसानी से तब लगाते हैं जब बाजार चढ़ा होता है, और उसके बाद जब बाजार में गिरावट आती है तो बड़ा नुकसान अचानक दिखता है, जिस वजह से हम बड़ा हतोत्साहित हो जाते हैं। उससे बचने के लिए तो बॉन्ड फंड में इस तरह से नहीं होता है। अगर आप ये दोनों बॉन्ड फंड का अगर आप 5 साल का रिटर्न देखेंगे या 10 साल का रिटर्न देखेंगे, ICICI कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, आप देखेंगे कि एक बहुत ही स्मूथ लाइन जो कि ऊपर ही जाता है। आप पता नहीं भविष्य में कितना मिलेगा, लेकिन पिछले शुरुआत से अभी तक ICICI प्रूडेंशियल में करीब 9% का रिटर्न पिछले 7 साल में मिला है। और इस पिछले 7 साल में पिछले 7 साल में नहीं, इसकी शुरुआत 2009 में हुई थी ICICI प्रूडेंशियल की, और ये काफी स्मूथ लाइन सीधा ऊपर जा रहा है और गिरावट नहीं देखी है। लेकिन इस पूरे समय में बड़ा उतार चढ़ाव भी देखा गया। मुझे उम्मीद है कि इसी तरह का रिटर्न इससे कम होगा, क्योंकि ब्याज दरों में कमी आई है। ब्याज दरों में कमी आने की वजह से 1-1.5% की कमी, 1% की कमी आप मान के चलो। लेकिन एक दूसरा फायदा है कि जब शुरुआत हुई थी उस समय डायरेक्ट प्लान नहीं होते थे, तो उनका खर्चा थोड़ा कम होता है। यहाँ पे डायरेक्ट प्लान का खर्चा जो है ये केवल 1/4% है, और रेगुलर प्लान की तुलना में जिसका कि 0.5% से ज्यादा उसका खर्चा है, तो वो 1/4% भी काफी मीनिंगफुल हो जाता है 6-7 साल की अवधि में। तो मुझे लगता है कि इसी तरह का रिटर्न उम्मीद करना चाहिए। आइए चलें मुंबई से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं केशव जी, बहुत बहुत स्वागत आपका, सवाल पूछिए। हेलो, गुड इवनिंग सर। जी स्वागत आपका। सर अगर लमसम अमाउंट डालना हो तो सर लिक्विड फंड अच्छा है कि आप क्या सजेस्ट करेंगे, लिक्विड फंड या FD में FD करना सही रहेगा? ऐसा कुछ कोई ऑप्शन है कि ये लमसम अमाउंट डाल सकते हैं सर? थैंक यू। जी हाँ, लिक्विड फंड में निश्चिंता से लमसम पैसा लगा सकते हैं। Virendra from Mumbai is with us now. Virendra, we welcome you. Good evening, Virendra ji and Market Mantra team. Good evening. Please ask your question. I have a question regarding the exit strategy from from an equity fund. When we reach our goal, so what should be the exit strategy? We should start thinking well in advance, because this is a little bit a tricky area. And I need your guidance on that. It is a very tricky area. Everybody invests well, and not too many people disinvest well. And so the primary thing is that, there are few reasons when you should exit. One is that I'm not talking of sell, but and exit becomes very simple. If you are investing for an objective, if you have been accumulating money for the down payment of a house, or if you're accumulating money for your retirement and the retirement is, little ahead, a few months ahead, or, year ahead, you should, exit becomes pretty straightforward. I would say that, I keep suggesting that do your SIP, never invest lump sum in equity. It is as much important to disinvest, do your SWP before you need the money. Don't wait for the last minute. The whole idea of investing in equity in a steady manner or in a staggered manner is to eliminate the possibility of market high. You don't catch the high. Assuming that, you had a lot of money and you invested in January 2008, or you had all the money and you invested in February 2020. The kind of decline that you see thereafter can be quite devastating. By averaging it, you are able to bring in some method. I'm not saying that it will reduce your losses. But it will substantially, reduce the big blow that can possibly eliminate you
or can drive you out of the market forever. Likewise, reducing the possibility of needing the money exactly at a most inopportune time when you need it, when the market could be very unfavorable. For this, I think, don't get into mathematics. Larger the money, prepare well in advance. If you have been investing for 30 years and you need the money for spending, building a house, or for your daughter's wedding, depending on the scale, start doing it 3 years before. Start doing it, start disinvesting 2 years before, or at least 1 year before. 8-9 years of accumulation, start doing it for 1 year before. Apply common sense. I don't think there is any formula, because this formula can actually be, by following this method, there is a possibility. It can work both ways. You might lose some money, but it is better to be safe than sorry, completely basing on the market. So there isn't a secret in terms that, doing this will translate into this kind of magical thing. That is the truth also about SIP. Many a times when you do SIP, sometimes, it is better to be, the market is so attractive, or it's gone down, and, market goes up in a hurry, that not doing the SIP would have been more profitable. But the whole idea is of doing SIP and disinvesting, selling your investments well beforehand in a structured way, in a methodical way, is to eliminate bad surprises, which can, which can really spoil your whole goal of investing. So do it a year before you need the money. Divide it in equated monthly withdrawal plan, and that's the way to go about it. Moving on, India became the 12th largest holder of U.S. government securities at the end of April, with holding worth $157.4 billion, according to official data. After significantly reducing the exposure in March to $156.5 billion, India marginally hiked the holding by $0.9 billion in April, the data from the U.S. Treasury Department showed. While the holding touched a record high of $177.5 billion in February, the same was drastically reduced in March. The exposure stood at $164.3 billion in January. At the end of April, Japan remained the country with maximum exposure at $1.27 trillion, followed by China at $1.1 trillion and the UK at $368.5 billion. हमारे साथ गाजियाबाद से इस दौरान जुड़ चुके हैं गौरव जी, बहुत बहुत आपका स्वागत। सवाल पूछिए। गुड इवनिंग मार्केट मास्टर टीम, गुड इवनिंग जितेंद्र जी। पर ये इस दौरान जिसमें अभी चल रहा है प्रॉब्लम, तो मल्टी कैप तो सबसे बढ़िया होते हैं, लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप में कब आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि जो FIIs आ रहे हैं वो तो सारा पैसा डाल रहे हैं लार्ज और ब्लू कैप में। ये मिड कैप और स्मॉल कैप का दिन कब आएंगे, अच्छे दिन इनके कब आएंगे? जरूर आएंगे, पता नहीं कब। काफी समय लग सकता है, लेकिन और उस समय के लिए अगर आप तैयार हैं कि 5-6 साल लगेगा अच्छा रिटर्न जनरेट करने में। अभी अगर आप देखेंगे कि जो 10 साल का रिटर्न भी अगर आप देखें तो मिड कैप में मिड कैप का रिटर्न अब मल्टी कैप के बराबर हो गया है। तो मिड कैप और स्मॉल कैप के चलने के लिए जरूरी है। सबसे पहले तो ये समस्या का जब तक समाधान नहीं होता है, मुझे लगता है कोई भी कैप नहीं चलेगा। ये चलेगा, बढ़ेगा, उतरेगा। अभी तो बाजार एक कंसोलेशन ले रहा है। हम उम्मीद कर रहे थे कि बुरी हालत होगी, उतनी बुरी नहीं हुई है, दोबारा से सब कुछ चल पड़ेगा, इस वजह से बाजार चल रहा है। लेकिन अभी मुझे लगता है कि आने वाला समय भारी उतार चढ़ाव का होगा, और उसके बाद जब दोबारा से ग्रोथ पाथ पे हम शुरू होंगे, ये सारी समस्या हमारे पीछे रह जाएगी, तब स्मॉल कैप और मिड कैप का समय आएगा। लेकिन ये सब कुछ कहना, ये सब जो मेरा आकलन है, ये काफी समय काम नहीं करता है। मुझे उम्मीद थी कि बाजार इसमें इतनी भारी रफ्तार से इस तरह का टर्न अराउंड होगा, लेकिन जिस तरह से बाजार में पैसा आया है, जिस तरह से दुनिया भर के सेंट्रल बैंक ने जिस तरह का लिक्विडिटी बढ़ाया है, ब्याज दरों में कमी हुई है, तो बाजार तो उतना गिरा ही नहीं जितना मुझे लग रहा था कि पूरा दुनिया अगर ठप हो जाए, लेकिन बाजार ठप नहीं हुआ। तो समय जरूर आएगा, बहुत समय लगेगा, लेकिन 7-8 साल लग सकता है।
And also, let's give you some important information about the India Meteorological Department has said that the conditions are becoming favorable for further advancement of southwest monsoon into some parts of Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Uttarakhand over the next 2 to 3 days. According to the IMD, the monsoon will make an onset in Delhi, Haryana and Punjab around June 24 to 25. According to weather experts, the monsoon is likely to arrive 2 or 3 days earlier in Delhi because of a cyclonic circulation over West Bengal and the neighborhood, which moved towards southwest Uttar Pradesh yesterday. हमारे साथ हैदराबाद से इस बीच आज जुड़े हैं राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। सवाल पूछिए। नमस्ते सर। नमस्ते। मेरा सवाल ये है कि मैं म्यूचुअल फंड में लगातार 5 साल से इन्वेस्ट कर रहा हूँ, बट मैं देख रहा हूँ कि जो मेरा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो 5 साल में अभी तो जो सिचुएशन उसके अकॉर्डिंग 0 हो गया है। लेकिन मैंने जो पिछला भी एनालिसिस किया था कि म्यूचुअल फंड और कंपेयर टू अदर इन्वेस्टमेंट और डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट इन द शेयर मार्केट, इन केस में पिछले हर एक 4-5 साल में जो भी इन्वेस्टमेंट है उस पर रिटर्न 0 हो जा रहा है। तो मैं कैसे म्यूचुअल फंड को एक इफेक्टिव, मैं एसआईपी के थ्रू ही करता हूँ, रेगुलर एसआईपी कर रहा हूँ, अभी भी एसआईपी कर रहा हूँ इस सिचुएशन में भी, बट मेरा रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट हमेशा 0 ही हो रहा है, कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है म्यूचुअल फंड में एसआईपी लॉन्ग टर्म में भी इन्वेस्ट करते हुए रहने से। हर 4-5 साल में मार्केट डाउन हो रहा है और मेरा रिटर्न वो 0 हो जा रहा है। तो मुझे एक इफेक्टिव बताइए कि कैसे मैं अपना रिटर्न गेन कर सकूं, और या कोई दूसरा जरिया हो या डायरेक्ट मैं स्टॉक मार्केट में प्ले करूं। डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में लगाना और म्यूचुअल फंड में लगाना ये एक अलग प्रश्न है कि आप क्या सक्षम है लगाने में और क्या आपके पास टेम्परामेंट है और आप अच्छी कंपनियों को खरीद करके एक अच्छा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना के आप चला सकते हैं। तो उसका फायदा ये होगा कि म्यूचुअल फंड का जो खर्चा है वो बच जाएगा कम से कम 1%, और अगर आप रेगुलर प्लान के जरिए लगा रहे हैं तो 2%। तो इतना आपका रिटर्न बढ़ सकता है अगर आप डायरेक्ट प्लान में लगाएं। लेकिन वो सबके और लेकिन इसमें आपके लिए वो हर महीने 5,000 रुपया 1 तारीख को केवल इन्वेस्ट कर देना, वो आसानी खत्म हो जाती है। तो ये एक सवाल है कि आप देखिए कि आप खुद कर पाने में सक्षम है, और बहुत सारे लोग कर पाएंगे। आज स्टॉक में भी पैसा लगाना काफी आसान हो गया है, और अगर आपके पास समय है, अगर आपके पास इच्छा है, और अगर आप बारीकी से कंपनी को देखकर समझकर आप चुनाव कर पाते हैं, और आपके पास टेम्परामेंट है कि आप 5-10 साल के लिए स्टॉक खरीदने का की क्षमता रखते हैं, जो कि आप रखते हैं, तो ये एक सवाल है। दूसरा कि आपका हर 5 साल पे पैसा बनता नहीं है, उसका क्या करें? उसका एक सिंपल तरीका है कि आप पैसा लगाइए 40% फिक्स्ड इनकम में और 60% इक्विटी में, और हर साल या जब कभी भी ये आपका जो रेशियो है 60% बढ़कर के अगर 66% हो जाए तो 6% पैसा निकाल के फिक्स्ड इनकम में लगा दीजिए। इससे आप देखेंगे ऑटोमेटिक आप पीरियोडिकली इसको रीबैलेंस करते रहिए। अगर ये पैसा ऊपर नीचे होते हो जाता है तो अगर आप 50% लगाते और ये पैसा बढ़ करके आपका 50% लगाया हुआ इक्विटी में अगर 55 हो जाता है, तो आप सारा पैसा इक्विटी से नहीं निकालते हैं, केवल 5% जो बढ़ गया है, आपने लगाया था 1 लाख रुपया और 1 लाख रुपए में 50,000 इक्विटी में लगा था, 50 डेट में लगा था, 55,000 रुपए जो आपका इक्विटी में होंगे वो 55 को में से 2,500 निकाल करके आपने कर दिया ताकि दोबारा से वो आपका 50% हो जाए। तो जब ये आपका जो एसेट एलोकेशन समय बहुत कम है धीरेन्द्र जी, अगर बिगड़ जाए तो एक जगह से निकाल के पैसा दूसरे में लगाइए, उससे आपका जो हर 5 साल पे 0 हो जाता है, ये समस्या खत्म हो जाएगी। धीरेन्द्र जी को हम आप श्रोताओं की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। धन्यवाद आपका। And before we close, a reminder of the headlines. Foreign investors pump in nearly 18,000 crore rupees into the Indian capital market so far in June. India becomes the 12th largest holder of US government securities in April, and conditions becoming favorable, monsoon to reach North India next week, says the Indian Meteorological Department. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. Market Mantra. Market Mantra.